Namaskaram. Welcome to this new episode of Advantage, where we learn how to read newspapers. So, this editorial is from The Hindu of 1st March. 1st March. It is about the steps that will shape India's AI ambition. What are the ambitions? What are the projections that India is having in the in the segment of artificial intelligence? And what are the steps needed that will enhance India's prospects in the field of AI? This is the topic that will be discussed in this editorial. So let's start. First, I hope you all know what is the meaning of AI, artificial intelligence. So the article starts like this. In the heart of Bengaluru, developers find themselves racing against time to outbid Chinese rivals for major AI-driven projects with international clients. So it is giving some random, you can say, random scenario what is happening in Bangalore, that software developers are trying to outbid Chinese rivals, means trying to uh, go ahead of the Chinese rivals for major artificial intelligence driven projects. Despite being part of a skilled workforce, deals often slip away due to capabilities Indian firms struggle to match. Indian is India do have a skilled workforce, लेकिन फिर भी when it comes to cracking a deal with international clients, डील्स ऑफन स्लिप अवे, हाथ से फिसल जाते हैं डील्स इंडियंस के हाथ से। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल डेवलपर्स डिलेमा, इट इज अ ग्लिम्स टू इंडियाज इनटू इंडियाज क्रॉस रोड्स। ये एक पूरी झलक है ओवरऑल इंडियाज क्रॉस रोड्स। इंडिया कहाँ पे अभी एआई के फील्ड में कहाँ पे टिका हुआ है, कहाँ पे वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द फील्ड ऑफ एआई, उसी के बारे में ओवरऑल कहा गया है। तो इस स्टेटमेंट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में। The only good point written in this paragraph is that India has a skilled workforce. तो अब आपसे if UPSC asks you about the potentials of India in artificial intelligence, then this point can be elaborated that India has a skilled workforce. Faced with a three-way race to catch up with Silicon Valley is something which is in United States. Big technical companies headquarters are located in Silicon Valley, like Apple. So it is saying to race to catch up with Valley while being chased by China and Southeast Asia. India is being subjected to rigorous competition. So this is, you can say, a challenge that India is facing. तो ये एक चैलेंज हो गया। चैलेंज क्या है कि इंडिया इज फेसिंग अ रिगरस कंपटीशन with US and China based companies and also those located in Southeast Asia. But if it wants to prevail का मतलब आपको पता होना चाहिए, if it wants to prevail at the forefront of the AI race, India must recognize that the challenge lies not in whether businesses prefer a local foreign AI platform, but in whether market regulations will inadvertently stifle India's momentum. Inadvertently means unavoidably. तो यहाँ पे the writers are saying that it is very important for India to win this competition is by ensuring that the market regulation in India are very much conducive to the development of AI field. इतना ज़्यादा हम रेगुलेट ना करने लगे एआई के फील्ड को कि जो कंपनीज हैं वो इंडिया आने से डरें, बचें कि यार इंडिया में एआई को लेकर के बहुत तगड़ा रेगुलेशन है, हर चीज़ में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। सो कंपनीज शुड नॉट अवॉइड कमिंग टू इंडिया। This thing you should keep in mind. So this is the overall written in a bit of crisp format. अब इसी चीज को लेकर के राइटर्स हैव विल elaborate based on this regulation. So regulation is going to be the core topic of this editorial. The issues in India. Export competitiveness hinges मतलब टिका हुआ है on the nationwide deployment of productivity enhancing technologies. एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, बात हो रही है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की। इंडिया का टेक्नोलॉजी लेवल में एआई सेक्टर में क्या एक्सपोर्ट कर सकता है, इंडिया कितना कॉम्पिटिटिव है कि एआई बेस्ड सर्विसेज फॉरेन कंपनीज को प्रोवाइड कर सके।
इंडिया की ये कॉम्पिटिटिवनेस इस बात पे डिपेंड करती है कि इसका डिप्लॉयमेंट कैसा है टेक्नोलॉजी को लेकर के, नेशन वाइड डिप्लॉयमेंट। मतलब रीजनल लेवल पे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ किसी एक सिटी में बिल्कुल क्लस्टर बना हुआ है कि सिर्फ बैंगलोर में ही सारी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है और कहीं नहीं है। तो नेशन वाइड डिप्लॉयमेंट कैसा है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Indian services and consultancies must incorporate AI technologies to maintain their lead position in the global market। ठीक है, सिंपल सी बात है। एआई को इनकॉर्पोरेट कीजिए, एआई को अडॉप्ट कीजिए, बट कंसर्न्स रिमेन ओवर द मैसिव लॉस ऑफ रूटीन जॉब्स, okay, discriminatory algorithmic decision making, and negative risks of human impersonation. So these are the concerns. So these are the concerns about what? About the rising role of AI। तो आप कह सकते हैं, अगर आपसे यूपीएससी पूछे व्हाट आर द चैलेंजेस अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई, तो आप बता सकते हैं कि एआई के आने से देयर इज रिस्क ऑफ लॉस ऑफ रूटीन जॉब्स। एआई के आने से जॉब लॉस का रिस्क है, रोबोटिक हो जाएंगी चीजें। डिस्क्रिमिनेटिक डिस्क्रिमिनेटरी एल्गोरिथमिक डिसीजन मेकिंग। अभी अगर आपको पता हो तो रिसेंटली व्हेन प्राइम मिनिस्टर वेंट टू पेरिस फॉर एआई समिट, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड लेने को लेकर के एआई से अगर आप कुछ पूछते हैं, एक बोलते हैं कि एक इमेज बनाओ राइट हैंड लेफ्ट हैंडेड पर्सन की, तो वो राइट हैंडेड पर्सन की इमेज बनाता है। तो दिस इज काइंड ऑफ कि कैसे जो एआई के जो एल्गोरिदम्स हैं, जो डाटाबेस है, वो कैसे बायस्ड किसी चीज को लेकर के और कैसे वो बायस्ड ओपिनियन दे सकता है। एक और एग्जांपल आप इसका कुछ ऐसे ले लीजिए कि रिसेंटली एक एआई जो वो है दैट इज डीप सीक। डीप सीक से एक व्यक्ति ने पूछा कि व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड इन मणिपुर, तो डीप सीक ने उसके ऊपर एक लंबा सा ऐसे लिख के दे दिया। Okay, fair enough. When the same person asks this DeepSeek about the challenges being faced in Xinjiang of China, ओके, जब वो पूछा कि उसका क्या है चाइना में जिनजियांग प्रोविंस में जो क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या ट्रबल है, तो डीपसीक ने बोल दिया है कि दिस इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी। तो दिस इज काइंड ऑफ कि डीपसीक का जो लैंग्वेज मॉडल है, डीपसीक का जो डाटाबेस है, दैट इज काइंड ऑफ वेरी मच बायस्ड अगेंस्ट इंडिया एंड इन फेवर ऑफ चाइना। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग टू एक्सप्लेन यू डिस्क्रिमिनेटरी एल्गोरिथमिक डिसीजन मेकिंग एंड द नेगेटिव रिस्क ऑफ ह्यूमन इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन मतलब क्या हुआ? कॉपी कर लिया। ह्यूमन पर इम्पर्सोनेशन मतलब सपोज कीजिए कि हम अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल के एडवर्टीजमेंट बना दिया, अमिताभ बच्चन की आवाज़ क्लोन करके कोई एडवर्टीजमेंट प्रमोट करने लगे। ठीक है, तो दीज आर द सम चैलेंजेस ऑफ एआई। तो ओवरऑल आप मान के चलिए कि दीज आर दोस काइंड ऑफ चैलेंजेस जिसमें देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन। अगर रेगुलेशन नहीं हुआ तो ये चीज़ें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इन पर्टिकुलर डीप फेक आपको पता होना चाहिए। फॉल्स यू कैन से कि रॉन्ग वीडियोस, जो इम्पर्सोनेशन की बात हमने की, कुछ ऐसे वीडियोस विच अपीयर टू बी रियल बट इन दे आर नॉट रियल एक्चुअली, undermine trust by spreading misinformation and destabilize political processes, eroding credibility rapidly। ठीक है, दिस इज एक डीप फेक का एक ओवरऑल आप कह सकते हैं कि चैलेंज दिया गया है डीप फेक के बारे में कि डीप फेक से क्या दिक्कत है। तो डीप फेक spreads misinformation, destabilizes political processes and erodes credibility। ठीक है, so AI adoption issues such as misinformation and intermediary liability are at the forefront of the AI discussion in India। Very, very, very much okay। हमने अभी देखा मिस इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे गलत चीज़ों का स्प्रेड होना, फेक न्यूज़ का, रूमर्स का, बायस्ड इंफॉर्मेशन का स्प्रेड होना, लोगों के बीच, पब्लिक के बीच गलत भावना का फैलाव होना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना, डिसेमिनेशन होना, दिस इज समथिंग विच इज एट द फोर फ्रंट ऑफ द एआई डिस्कशन इन इंडिया। बहुत मेजर कंसर्न है। वेरी ऑफन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इवन द आवर पॉलिटिकल लीडर्स कीप फोकसिंग ऑन दिस मिस इन्फॉर्मेशन एस्पेक्ट, हाउ टू फाइट मिस इन्फॉर्मेशन। As digital platforms have become primary conduits for information dissemination। conduit का मतलब क्या होता है? conduit मतलब माध्यम। आज के सिनेरियो में क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फोन, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, दे हैव बिकम प्राइमरी माध्यम, प्राइमरी मीडियम, प्राइमरी कंडुइट फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन
और सब कुछ अगर इंफॉर्मेशन का जो कंजम्पशन है दैट इज इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को क्लीन एंड क्लियर रखा जाए विदाउट एनी मिस इन्फॉर्मेशन. The general opinion among startups in India is that intermediaries, usually foreign tech giants, often set the rules of engagement, making it challenging for local startups to compete. बहुत अच्छा सा पॉइंट दिया हुआ है. चैलेंज आप बता सकते हैं ये. चैलेंज नंबर आप इसको भी नोट कर सकते हैं. ऊपर हमने 3 देखे तो दिस इज चैलेंज नंबर 4. क्या है चैलेंज? ये जो फॉरेन टेक जायंट्स हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज जैसे चैट जीपीटी, ओके, गूगल, दे ऑफन सेट द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट मेकिंग अ चैलेंज. तो वो जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं उनके सामने हमारे जो लोकल स्टार्टअप्स हैं इंडिया के, उनके लिए कम्पीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है. बहुत बड़ा इशू है. बहुत डिफिकल्टी हो रही है बड़ी-बड़ी कंपनीज के साथ कम्पीट करना. तो आप इस पॉइंट को भी ले सकते हैं एज अ चैलेंज. टेंशन हैज़ इंक्रीज्ड सिंस विद रिसेंट इंडियन ऐप डेवलपर्स फाइलिंग. तो एक कुछ एग्जांपल दिया जा रहा है कि रिसेंटली कुछ ऐप डेवलपर्स ने जो कंपनीज हैं गूगल जैसी कंपनी के खिलाफ एक केस फाइल करा था. इट इज अबाउट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर ऑन दोज कंपनीज विल नॉट नेसेसरी रिजॉल्व द कोर प्रॉब्लम ऑफ मोनोपोलिस्टिक. तो इट इज सेइंग कि मोनोपोलिस्टिक सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल का, वो मोनोपोलिस्टिक सिस्टम को अगर मैनेज करना है तो उसके लिए मोनोपोलिस्टिक बिजनेस प्रैक्टिसेस को अगर मैनेज करना है तो दैट इज नॉट ओनली पॉसिबल थ्रू रेगुलेशन और administrative solutions. Regulating AI will interfere with technological adaptation, which will have under undesirable consequences on India's relative competitiveness. अब यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि अगर आप AI को रेगुलेट शुरू करना कर देंगे तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा. अब यहाँ पे बात आ गई रेगुलेशन की. तो अगर हम एआई को रेगुलेट करने लगेंगे तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है? तो निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि टेक्नोलॉजी का जो अडेप्टेशन है वो स्लो हो जाएगा. अब सपोज कीजिए कि एक छोटी सी बात आप मान के चलिए कि सपोज कीजिए लूडो, कोई सी भी एक इंडस्ट्री ले लीजिए. फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री आप ले लीजिए. तो टेलीकॉम इंडस्ट्री शुरू-शुरू जब इंडिया में आई, तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर का ही मेजर रोल था, बिकॉज़ हाइली रेगुलेटेड था. जब रेगुलेशन जहाँ पे हो जाएगा, रेगुलेशन का मतलब कि हर चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेशन. क्रक्स आपको रफ बता रहा हूँ मैं. जब हर चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, सारे रूल्स, सारे नियम, कानून सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है और कंपनीज़ को फ्रीडम नहीं है कुछ करने का. गवर्नमेंट ने ही रूल बना दिया कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम नहीं करेंगे, आपका रेट इतना होगा, आप इतने पैसे चार्ज नहीं कर सकते. ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि प्राइवेट कंपनीज के लिए टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट रूल ला दे कि आपको 1 रुपये पर मिनट से ज़्यादा चार्ज नहीं करना, 2 रुपये नहीं लेना. तो अगर उस तरीके का सारा कुछ रूल्स अगर गवर्नमेंट ही सेट करने लगे तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना विल बिकम वेरी मच डिफिकल्ट. उन्हें लगेगा कि यार इतना सब कुछ रेगुलेटेड है, हमें तो फ्रीडम रहेगा ही नहीं कोई डिसीजन लेने का. तो दिस इज ऑलवेज सेट वन ऑफ द मेजर यू कैन से कि चैलेंजेस ऑफ रेगुलेटिंग अ सेक्टर. द सेम अप्लाइज टू एआई. एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी इट इज अ यू कैन से कि बडिंग फेज में है. अभी इसकी शुरुआत हो रही है धीरे धीरे. और इस केस में अगर एआई के अभी शुरुआत की शुरुआती दौर में ही अगर इसे हम हाई प्रोफाइल रेगुलेशन के क्षेत्र में डाल देंगे, इसके ऊपर बहुत हाई प्रोफाइल रेगुलेशन करने लगेंगे, तो चांसेस हैं कि जो कंपनीज हैं टेक्नोलॉजिकल कंपनीज वो इस हम इंडिया से दूरी बना लेंगे कि अगर हम इंडिया में जाएंगे तो वहाँ रेगुलेशन बहुत होगा, हम फ्री होकर के इनोवेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो दिस विल बी काइंड ऑफ अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस. India has already localized a significant portion of AI value chain and additional AI related compliance cost may hamper in it. ठीक है, एक सिंपल सी बात है, ये कुछ खास नहीं है कि ठीक है हमने लोकलाइज करा है, हमारे इंडिया भी अपने बहुत कुछ एआई बेस्ड हम चीज़ों पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है. बट उस पे ज़्यादा फोकस करना और फॉरेन कंपनीज फॉरेन टेक जायंट्स के साथ कॉपरेट नहीं करना, उसे कहीं ना कहीं निगेटिव रिपरकशंस होंगे. उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट ठीक है आप इसको ध्यान में रख सकते हैं. India's position as the world's IT powerhouse gives it a unique advantage in the AI era. बहुत अच्छी अच्छी बात है ये. एक आप कह सकते हैं कि अगर जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था पोटेंशियल
इंडिया का पोटेंशियल क्या है इंडिया एआई के क्षेत्र में। तो पोटेंशियल इंडिया का बहुत सॉलिड ये है कि इंडिया का जो आईटी पावर हाउस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो बहुत स्ट्रांग है। और अगर और एआई इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चांसेस हैं कि हमारा जो एआई आईटी पावर हाउस है उसको हम लेवरेज लें, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करें और हम एक एआई पावर हाउस बन जाए। ऐसे चांसेस हैं, पर उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। Attempts to govern and regulate AI occur as industrialized nations compete globally for industrial leadership। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो लीडरशिप के लिए ऑब्वियसली वो रेस में भाग रही हैं। यूरोपियन यूनियन ऑप्टेड फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। अब यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है इट अडॉप्टेड फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू एड्रेस रिस्क एंड सोसाइटल इम्पैक्ट्स। इन कॉन्ट्रास्ट इसका अपोजिट में यूएस मेंटेन्स मोर हैंड्स ऑफ स्टाइल्स प्रायोरिटाइजिंग इनोवेशन। तो दो एक चीज दी गई, ईयू वर्सेस यूएस। ईयू में जो है यूरोपियन यूनियन में क्या है, एआई को लेकर के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। ईयू ने बहुत अच्छे से रेगुलेट करा हुआ है कि इस तरीके की चीज़ें एआई जो है एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जो है क्या काम करेंगी, कैसे काम करेंगी। अगर वो कुछ फालतू का कोई काम करती है तो उसके ऊपर ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए पब्लिक कहाँ जा सकती है, ये ईयू ने किया। अब यूएस ने क्या किया, यूएस ने मोस्ट ऑफ दी चीज़ों को फ्री हैंड रखा, कंपनीज को फ्री रखा ताकि वो आराम से इनोवेट कर सके, ज़्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा। इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ इन अ डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन दीज टू पार्ट्स। अब कहा जा रहा है कि इंडिया को इन दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। अगर इंडिया ईयू के रास्ते जाएगा तो इंडिया के लिए नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। और इंडिया सब कुछ फ्री भी नहीं छोड़ सकता यूएस की तरीके कि हमने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, जो करना है करो। इट इज सेइंग कि इंडिया को एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। But sooner misconceptions about quickly outdated market rules addressing a limited set of hypothetical risks are set aside, the better India can focus on outpacing commercial rivals such as China and the US। ठीक है, जितनी हो जल्दी हो सके कि हमारे यहाँ जो मिसकंसेप्शंस हैं आउटडेटेड मार्केट रूल्स को लेकर के, और वी आर लाइक कंसर्न अबाउट सम हाइपोथेटिकल रिस्क। हम बहुत पहले से ही डर जा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या, लाइक बहुत हाइपोथेटिकल का मतलब विच इज अपियरिंग टू बी लाइक आगे होने वाला है। मतलब हम उस किस चीज को बढ़ा चढ़ा के सोचने लगते हैं, अगर एलियंस आ गए तो, धरती फट गई तो हाइपोथेटिकल है वो। तो एआई को लेकर के भी है हाइपोथेटिकल रिस्क, लाइक काइंड ऑफ कि अगर एआई इतना, एक रोबोट इतना स्ट्रांग हो जाए कि रोबोट जो है मालिक बन जाए और सब कुछ कंपनी चलाने लगे, एंड रोबोट विल स्टार्ट रूलिंग ह्यूमंस। चांसेस हैं कि ऐसा रिस्क हो सकता है, बट वो बहुत दूर की चीज़ है, वो हाइपोथेटिकल रिस्क है, नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। तो रूल्स एड्रेसिंग अ लिमिटेड सेट ऑफ हाइपोथेटिक, अगर ऐसे रूल्स को अगर हम सेट असाइड कर दें तो इंडिया थोड़ा अच्छे से अपने पोटेंशियल को लेवरेज कर सकता है और अपने राइवल जैसे चाइना और यूएस को अच्छे से राइवल्स के साथ compete कर सकता है। सो अभी तक वी जस्ट लर्न अबाउट रेगुलेटिंग। सो दी ओवरऑल अभी तक हमने देखा कि रेगुलेशन इन इंडिया शुड बी अ मिडिल पाथ। इट शुड नॉट बी लीनिंग टूवर्ड्स मच स्ट्रिक्टर वे as in European Union, and it should not be also in a free play, free medium, free movement, freedom wala aspect as evident in United States। There are very good reasons why the EU has chosen to legislate through binding laws। यू के पास, यूरोपियन यूनियन के पास रीजंस हैं कि उन्होंने बाइंडिंग लॉज क्यों लाए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन क्यों लेकर के आए। ठीक है, तो यू लैक्स सुपर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो यू के बारे में बताया गया है कि यू में रेगुलेशन लाने के पीछे रीजन है कि यू जो है एक यूनियन है अबाउट सेवरल स्मॉल कंट्रीज का, अराउंड 28-29 कंट्रीज को मिलाकर के एक यूनियन है। तो अगर हर यूनियन अपने हिसाब, हर कंट्री, स्मॉल कंट्री अपने हिसाब से अगर काम करने लगती तो देयर वुड हैव बीन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी नहीं होता अगर हर कंट्री अपने हिसाब से रहती। तो इसलिए यू ने क्या किया गया कि सबको एक जैसे बांधने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाया गया। ठीक है, देयरफॉर अनलाइक इन इंडिया द यू मस्ट इनेक्ट बाइंडिंग रूल्स। ठीक है, additionally the cost of regulatory failure are too high if India's exporting capabilities are at stake, particularly given China's dominance in hardware and cloud technologies। अगर रेगुलेटरी फेलियर होता है इंडिया का तो उसके कॉस्ट बहुत तगड़े होंगे, उसका नुकसान बहुत जोरदार होगा।
इंडिया की एक्सपोर्टिंग कैपेबिलिटी पे, बिकॉज़ उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो चाइना है वो डोमिनेट करता है हार्डवेयर और क्लाउड टेक्नोलॉजी को। मतलब नो डाउट हमारे पास आईटी का पावर हाउस है, आईटी का स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास। लेकिन बात अगर हम हार्डवेयर की करते हैं और क्लाउड टेक्नोलॉजी की करते हैं, व्हिच आर एक्चुअली अ बेडरॉक ऑफ यू कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन दोनों चीज़ों में हार्डवेयर एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज के मामले में चाइना इज़ अ डोमिनेंट प्लेयर। तो अगर हम आँख बंद करके रेगुलेट करते चलेंगे तो कहीं न कहीं इसके नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं। तो एक अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। इंडिया हैज़ प्रीवियसली, अब दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लाइक यू कैन से कि आर्गुमेंट गिवन अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ एआई इन इंडिया। अभी जो हमने देखा, दिस इज़ एन आर्गुमेंट अगेंस्ट। India has previously taken inspiration from EU or US laws, however, it must follow its own paths and pursue its national interests based on its services driven इंडस्ट्रियल प्रोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है और उसमें अगर यूपीएससी आस्क्स अ क्वेश्चन रिगार्डिंग रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, तो उसमें आप एक बहुत अच्छा पॉइंट कह सकते हैं कि इंडिया शुड रेगुलेट कंसिडरिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स ऑन प्रायोरिटी, बिकॉज इंडिया इज अ सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इस पॉइंट को अच्छे से एलाबोरेट करके आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेटरी अटेम्प्ट्स दैट कैन impede AI development in India may allow businesses to repatriate from India and relocate AI development and software design development in other countries, एआई फ्रेंडली रूल्स वाली कंट्रीज में। तो कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर हम हाई स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना शुरू कर देंगे तो चांसेस हैं कि कंट्री जो कंपनीज हैं वो इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्रीज में स्विच कर जाएंगी। सीधी सी बात है, जहाँ जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन रहेगा, कंपनीज को अगर इस चीज़ का स्कोप, इनोवेट करने का स्कोप और नए तरीके लगाने का स्कोप, प्रॉफिट करने का स्कोप अगर हम नहीं देंगे, तो कंपनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगी, सीधी सी बात। In other words, Indian IT services and consultancies held back by AI regulation run the risk of losing their hold of the global market. तो this is again you can say an argument against strict regulation। ठीक है, ये भी एक आर्गुमेंट आप कह सकते हैं अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। क्या आर्गुमेंट है भैया कि अगर ज़्यादा रेगुलेशन करेंगे तो इंडियन कंपनीज में लूज इन द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, इंस्टेड द इंडियन गवर्नमेंट कैन यूज इट्स डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एंड इंश्योर दैट ओपन सोर्स मॉडल्स रिमेन ओपन, accessible and commercially viable, paired with international strategic partnership for energy security, computing reasons and international standardization। एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि काइंड ऑफ की वे फॉरवर्ड है, आप कह सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो ओपन सोर्स मॉडल्स होते हैं लाइक जिसके ऊपर कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो ओपन सोर्स मॉडल जो है ओपन रहे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा ना आए, एक्सेसिबल रहे। ठीक है, और पेयर्ड विद और इंडिया जो है थ्रू इट्स डिप्लोमेसी शुड इंश्योर दैट इट रिमेन्स पेयर्ड विद इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। ठीक है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप के साथ जो है इंडिया जुड़ा रहे, अलग थलग ना हो जाए। तो ये सारी कुछ वे फॉरवर्ड हैं जिसको आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, अपने आर्गुमेंट्स में डाल सकते हैं कि इंडिया को कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ। Building on the expected strong adoption of AI, public officials have a responsibility to listen to political and social concerns. Building on the expected strong adoption of AI, public officials have a responsibility to listen to political and social concerns। ठीक है, एआई का स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कंसर्न्स हैं हमारे, उन कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग किया जाए पॉलिटिकल एंड पब्लिक ऑफिशियल्स के थ्रू। जो भी हमारे कंसर्न्स है, चाहे वो कंसर्न्स पॉलिटिकल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो। तो इस स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि इस स्टेटमेंट में आपको दो कीवर्ड्स दे दिए गए, पॉलिटिकल एंड सोशल कंसर्न्स। अब खुल के नहीं बताया गया, तो आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपसे हो जाए ऐसे कि व्हाट आर द कंसर्न्स, सपोज कीजिए कि अगर कंसर्न की बात करते हैं हम कि कंसर्न क्या है इन इंडिया, तो आपको इसके लिंक्स निकालने आने चाहिए। पॉलिटिकल कंसर्न्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एआई के बेसिस पे फेक न्यूज़ वगैरह क्रिएट करके किसी पॉलिटिकल पार्टी के
उसके उसके पॉलिटिकल पार्टी का जो फ्यूचर पैटर्न हो सकता है, उसके पॉलिटिकल पार्टी का भी जो आप कह सकते हैं उसका जो आउटकम हो सकता है, उसका जो पोटेंशियल हो सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के कुछ र्यूमर फैला दिया गया, तो उसके जो वोटर हैं वो हो सकता है उससे कट जाएँ और उसको वोट ना दें। एक पॉलिटिकल नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है एआई का। सोशल लेवल पे क्या हो सकता है? सोशल लेवल पे बहुत कुछ है। एआई ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो सबके सबके समझ में नहीं आने वाली अभी। तो हो सकता है कि ये सोशल डिस्पैरिटी क्रिएट करे। दोज हु आर एफिशिएंट एंड गुड एंड नॉलेजेबल इन एआई, उनकी इनकम, उनकी सब कुछ हाई हो जाए, और जिनके पास एआई नहीं है वो हो सकता है आईटीआई में फंसे रह जाएं। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, लो लेवल पे छोटे मोटे, पाइप ठीक करना, मोटर ठीक करना, पंखा ठीक करना। तो कुछ अभी भी क्या है कि अगर आप चले जाएंगे रूरल एरियाज में तो आईटीआई अभी भी क्रेज में है, जबकि आईटीआई बहुत ही पुरानी चीज हो रही है। तो चांसेस हैं कि जहां लोग एआई को लेकर के अपनी इनकम इंक्रीज कर रहे हैं, वहां लोग अभी भी पुराने तरीके से ही पीछे ही पड़े हुए हैं। तो ये जो है गैप बढ़ता जाएगा, एंड दिस गैप विल बी लीडिंग टू सोशल डिस्पैरिटी। तो इस तरीके से आपसे अगर यूपीएससी पूछता है व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ एआई, तो आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमी के एस्पेक्ट में, ठीक है, इन चीजों को आपको एक्सप्लोर करना होगा। ओके। While India is not explicitly pursuing ex ante product regulation on AI akin to that in Europe, various agencies have launched conflicting policies, resulting in a minor power struggle that resulted in a fragmented policy landscape. इंडिया इज नॉट एक्सप्लिसिटली परसुइंग एक्स आंटे। एक्स आंटे का क्या मतलब होता है? एक्स आंटे का मतलब कि बेस्ड ऑन फोरकास्ट, आपको अनुमान लगा करके आप कोई काम कर रहे हैं। आप भयभीत हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं कि अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो उससे बचने के लिए आपने कुछ ऐसे रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर दिए जिसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया इज नॉट एक्सप्लिसिटली परसुइंग ऐसा ऐसा रेगुलेशन इंडिया एक्सप्लिसिटली परस्यू नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया बहुत ज्यादा रेगुलेटेड जा रहा है, अभी नहीं जा रहा है, इंडिया अभी फूक फूक के कदम रख रहा है। लेकिन स्टिल देयर आर वेरियस एजेंसीज इन इंडिया विच हैव लॉन्च्ड कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज को आपको ऐसे समझना है कि देयर नीड्स टू बी यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए पॉलिसी लेवल पे अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया पॉलिसी लेवल पे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। सेम सॉर्ट ऑफ एआई पॉलिसी एंड एआई रेगुलेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया। ओवरऑल यहाँ पे ये बात कही गई है। तो आप इसको एज अ वे फॉरवर्ड ले सकते हैं। ये एक वे फॉरवर्ड आपके लिए हो गया। सो लेसन्स लर्न फ्रॉम यू and US point to the need to strengthen and future-proof existing laws rather than produce new ones। तो जो existing laws हमारे यहाँ हैं उसी को एनहेंस कीजिए, नए लॉ क्रिएट करने पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ये एक सजेशन दिया गया है। ठीक है, आप इसको एक वे फॉरवर्ड के रूप में रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। Current transitional guidelines have shown a feasible pathway to avoiding overlapping liability or regulatory blind spots by reinterpreting existing legislation। एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन को ही रीइंटरप्रेट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। इंडिया हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एंटी ट्रस्ट, कॉर्पोरेट लाइबिलिटी, फ्री स्पीच, पब्लिक ऑर्डर दैट कवर्स एआई डेवलपमेंट एंड यूज केसेस। इंडिया में नॉट नीड एआई स्पेसिफिक रूल्स लेजिस्लेशन सच एज आईटी एक्ट। बहुत अच्छी बात कही गई है। देखिए इसको समझते हैं। तो होता क्या है कि जब इंडिया में आईटी का आना शुरू हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इन अराउंड 2000 के आसपास, तो इंडिया लेकर के आ गई आईटी एक्ट रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो था उसको भी इम्प्रूव करा गया था। तो आईटी एक्ट लेकर के आ गई। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एआई का जो केस है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कंसर्न्स ऑफ एआई। ठीक है, तो एआई का जो कंसर्न था एक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। तो ये जो कंसर्न्स हैं, अब पॉलिटिकल कंसर्न्स लाइक फ्री स्पीच, इक्वालिटी, तो इन चीजों को लेकर के हमारे यहाँ ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फ्री स्पीच और इक्वालिटी को लेकर के। तो ये जो हमारे पास ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशंस लॉज हैं, इन्हीं को हम थोड़ा एनहेंस कर दें इस तरीके के से कि एआई को लेकर के ये चीजें जो हैं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, थोड़ा अडेप्टिव हो जाए। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल मान लीजिए इकोनॉमी।
तो इकोनॉमी में फ्रीड और कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, कंपटीशन के लिए हमारे यहाँ है सीसीआई, ठीक है? ताकि 2 कंपनीज़ जो हैं मिल-जुल करके एक एक अपना एक ग्रुप ना बना लें, कार्टेल ना बना लें और कार्टेल बनाने के बाद कंज्यूमर्स को हार्म ना होने लगे। तो सीसीआई उसके लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो सीसीआई को हम कुछ इस तरीके से एनहांस करें कि वो एआई रिलेटेड कंपनीज़ को भी हैंडल कर सके। पॉसिबल है ना, सीसीआई को इस तरीके से एनहांस हम कर सकते हैं कि जो एआई के फील्ड में जो कंपनीज़ काम कर रही हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करें। तो वहीं पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आईटी एक्ट हमने लेकर के आए, अच्छी बात है। उसी तरीके से आप देखो टेक्नोलॉजी में हमारे पास ऑलरेडी आईटी एक्ट है। तो आईटी एक्ट को ही हम थोड़ा-सा और एनहांस कर दें, इम्प्रूव कर दें। तो वहीं पे यहाँ पे राइटर साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है हमें नया लॉ लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है? एंटी ट्रस्ट, कॉर्पोरेट लायबिलिटी, फ्री स्पीच, पब्लिक ऑर्डर, आईटी एक्ट हमारे पास है। इन्हीं चीज़ों को और एनहांस कर दीजिए। तो एक बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड आप दे सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ overall new law, new legislation for regulation of AI, India needs to enhance its existing framework on a case to case basis. आप इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। इंडिया मस्ट चूज इट्स ओन पाथ अकॉर्डिंग टू इट्स नेशनल इंटरेस्ट। बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक कंक्लूडिंग लाइन आप के रूप में आप ले सकते हैं, अपने आंसर का कंक्लूडिंग लाइन या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं ये, कि इंडिया को अपना जो पाथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को कंसिडर करके ही लेना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, एआई के रेगुलेशन में आप इस वर्ड का जरूर से यूज कीजिए। द चैलेंज लाइज नॉट इन वेदर बिजनेसेस prefer a local or foreign AI platform, but in encouraging adoption. रैपिड अडॉप्शन की बात की जा रही है, ठीक है? एंड सपोर्टिंग ओपन सोर्स एंड अदर अल्टरनेटिव्स एक्सेसिबल फॉर फाइन ट्यूनिंग एंड ट्रांसफरिंग लर्निंग इन इट्स आईटी इंडस्ट्री। अडॉप्शन और लर्निंग की बात की जा रही है। क्या आप कैसे समझ सकते हैं इसको, अडॉप्शन को? तो इसको कुछ इस तरीके से लीजिए कि सपोज कीजिए कि जब आईटी आना शुरू हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो कुछ क्लस्टर्स बन गए इंडिया में, जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, ओके, नोएडा, या आप गुरुग्राम लगा लीजिए। तो ये कुछ क्लस्टर्स बन गए, सारे आईटी हब बन गए ये। अब इसी को कंपेयर कीजिए बंगाल का मुर्शिदाबाद, बिहार का सुपौल। सो दीज आर लाइक वेरी बैकवर्ड एरियाज, यू कैन से, बहुत पिछड़े हैं। तो आईटी के आने से कुछ एरियाज जो हैं बहुत आगे बढ़ गए इंडिया में, और एक रीजनल डिस्पैरिटी आ गई। ये रीजनल डिस्पैरिटी क्यों आई? बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट अडॉप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो राइटर साहब कह रहे हैं कि दे द सेम शुड नॉट हैपन व्हेन इट कम्स टू एआई अडॉप्शन। एआई का अडॉप्शन ऐसा होना चाहिए कि जो डिस्पैरिटी है वो कम हो। डिस्पैरिटी कैसी? चाहे डिस्पैरिटी रीजनल हो सकती है, सोशल हो सकती है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो सकती है। तो जो डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी कम होनी चाहिए। अडॉप्शन इतना अच्छा हो एआई का कि डिस्पैरिटी कम हो, ताकि ओवरऑल इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ इंश्योर किया जा सके। दूसरी चीज, रिलेटेड चीज क्या है कि जो लर्निंग्स हैं वो स्प्रेड हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेंगलोर में हब बना और यहाँ पे कुछ एआई रिलेटेड अगर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ से इसको दूसरे जगहों पे इसको ट्रांसफर किया जाए, लर्निंग का जो स्कोप है वो इम्प्रूव किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर इस क्षेत्र में आ सके। तो एक अच्छा सा आप टर्म यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर का भी ले सकते हैं, ठीक है? तो दिस वाज द ओवरऑल आर्टिकल। ओवरऑल हमें इसमें ये पता चला कि जो रेगुलेशन है, एआई का रेगुलेशन जो है इंडिया में है, इंडिया शुड बी डूइंग ऑन अ वेरी बाई ट्रेडिंग अ वेरी केयरफुल वॉक डूइंग अ वेरी केयरफुल वॉक। इंडिया शुड बैलेंस बिटवीन द अप्रोच अडॉप्टेड बाई यूएस एंड ईयू, यूरोपियन यूनियन, और इंडिया जो भी करे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके करे। वी ऑल्सो लुक्ड आफ्टर सम चैलेंजेस एंड इश्यूज फेस्ड बाई एआई एडॉप्शन, और हमने कुछ वे फॉरवर्ड देखे हैं कि इंडिया को आगे कैसे बढ़ना चाहिए इस क्षेत्र में। सो दिस वाज द ओवरऑल आर्टिकल।
I will be giving here a brief summary of all these and also a practice question for your ready reference.